नमस्कार, मैं हूं वरुण मलिक, आपके साथ आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हम यहां पर मौजूद हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इस इवेंट में। यहां पर वो एथलीट्स आए हैं जो आने वाले समय में पेरिस ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और वो मेडल्स की तलाश करेंगे जो भारत को चाहिए। यहाँ पर साथ ही मौजूदगी होगी पीटी उषा की, जो कि आईओए की प्रेसिडेंट है, मनसुख मंडाविया जी की, जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और हरदीप सिंह पुरी की, पेट्रोलियम मिनिस्टर की। आज हम बात करेंगे इन एथलीट्स से और जानेंगे उनकी कैसी तैयारी है आने वाले ओलंपिक्स के लिए, कितने वो तैयार हैं और किस तरह से आने वाले ओलंपिक्स में परफॉर्म करने वाले हैं। अभी हमारे साथ रितिका हुड्डा जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रितिका जी, आप जा रही हैं पेरिस ओलंपिक्स में, कैसी तैयारी है आपकी? सर मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप 76 केजी में आप पहली इंडियन बनी है 76 केजी में ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली। तो ये वेट कैटेगरी बाकी वेट कैटेगरी से कैसे डिफरेंस है? 69 केजी या उससे कम केजीज़ में कैसे डिफरेंस है? सर इसमें जैसे 76 केजी हैवी वेट कैटेगरी है और इंडिया से मुश्किल होता है मतलब क्वालिफाई करना, क्योंकि जो बाहर की अपोनेंट होती है वो अच्छी फिजिकल फिट भी होती है, स्ट्रेंथ में भी फिट होती हैं। तो इस बार भगवान ने मेरी सुनी तो मेरा क्वालिफाई हुआ। आपने अभी अंडर 23 में आपने गोल्ड मेडल जीता था, वर्ल्ड चैम्पियन आप बनी थी। आपने उससे पहले भी मेडल जीते हैं, तो वो एक्सपीरियंस ग्लोबल स्टेज पे आपने परफॉर्म किया है, पेरिस में कैसा हो सकता है वो? सर जैसे मैंने अभी तक जितने कंपटीशन में परफॉर्म किया, मैं चाहती हूँ, मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स सभी चाहते हैं कि मैं उनसे और बेटर परफॉर्म करूँ पेरिस ओलंपिक में, ताकि मैं गोल्ड ले पाऊँ। आप साक्षी मलिक को आइडलाइज़ करती हैं, मैंने आपके बारे में पढ़ा था। आप उन्हीं के वहाँ स्टेडियम से आती हैं, तो अगर आप मेडल इस बार लेके आएंगी तो आप क्या करेंगी सबसे पहले? सर मैं मेडल लेके आऊँगी सबसे पहले अपनी कोच, मेरी फैमिली, मम्मी पापा, मेरे भैया, अमित भैया, गाइडेंस है जो, सबको उनकी मेहनत है उनको दिखाऊंगी, उनके हाथ में दूंगी, और फिर जो मैंने जहाँ मंदिरों में जाना है वहाँ जाऊंगी सबसे पहले। We wish you all the best for the Paris Olympics and we hope you will make an impact. Thank you, man. Good evening. We have Srihari Nataraj, backstroke swimmer for India, competing in the Paris Olympics, and a short chat with him. Srihari, how are you feeling? New Olympics. How's your preparation been like? How's the body feeling? It's actually quite good. I found out only a few days ago that I've been selected and qualified for my second Olympics, so that's a thrill. And it was an anxious few days for me. Once I finished racing, we had to wait for everyone to get done. So training's been going really well. I'm feeling good. I kind of know what to expect, so it's exciting, and I can't wait for the experience. But at the same time, in my mind, I know I've been there before. I know what to expect, so it's not something that I can't handle. Is also there in my mind, so I'm quite calm at the same time. That was my actually next question. Yeah. Do you set your expectations for yourself? I always do, but yeah, I've learned to focus on the process and not on the results or on my goals. And that's something I'm going to do for the next 3-4 weeks as well, and focus on what I can control and what I can't, and not focus on what I can't control. And you have been to Olympics before, and after that you did really well at the Commonwealth Games. So what did that experience teach you through getting through the Commonwealth campaign? That was pretty scintillating, yeah. And how does that prepare you for this Olympics now? I mean, last Olympics was the first. It was the first time I was there, and that is the biggest stage for any athlete. So it was a little. On race day, I think I was mentally, as always, calm and ready and good to go.
But I think I got where I got a little overwhelmed and excited was around the village and with experiences like this. So that's something I've never done it, and you won't get that experience with any other games other than the Olympics. So that's something I didn't experience last time. And then going to the Commonwealth Games, I knew what to expect because I've been at the games before, and then I knew that there'll be a time at the games where I might get starstruck, or I might get carried away with something else that's happening, because the village is very happening. But then I'll understand that I'll have to tell myself that there'll come a time where it's time for me to focus on me, and then I can finish my races and then get back to everything else, and which is what I'm going to be doing this Olympics as well. There'll be a time for getting in the Olympic experience, but also there'll come a point where I have to shut all of that down and focus on me. And how did that experience now prepare you for this Olympics now that you are set to? At the end of the day, in my mind, it's just another race. That's how I've always looked at it. That's how I looked at it for the previous Olympics. That's how I'm looking at it now. Like I said before, I'm focusing on my training for the next 3 weeks, and I know I train well. If I just race well, I know we have a good shot at making the semi-finals. हेलो, अभी हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं। ये 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, ओलंपिक्स नज़दीक आ रहे हैं, महीने से भी कम का टाइम है। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस बड़ी चल रही है। शूटिंग रेंज पे आए दिन जाना होता होगा, कैसा शेड्यूल आपका रहता है? सुबह कैसे उठते हैं, मतलब कितना जल्दी, क्या शेड्यूल रहता है? हमारा आर्मी का पर्सनल मतलब वो है, रेंज है, तो उसी में मतलब रहते हैं। हमारे अकोमोडेशन बने हुए उसी में रहते हैं। उठ के सुबह ब्रेकफास्ट, योगा करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद फिर रेंज पे जाते हैं। तो योगा कितना ज़रूरी है शूटिंग के लिए? क्या मेडिटेशन से, इन चीज़ों से फोकस बढ़ता है? शूटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शूटिंग में तो मतलब मान लो पूरा ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत मतलब अहम है इस शूटिंग के लिए। तो अभी आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, नेशनल ट्रायल्स हुए थे, आपने वहाँ पे टॉप किया था, तो वहाँ पे कंपटीशन कैसा था? क्योंकि वो जो और एथलीट्स आ रहे थे कोटा लेके आए थे और आपने उनको हराया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे मतलब साथ थे हम, एक लाइन में खड़े सारे मैच कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को हराना है, बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और मैं अपनी जो ट्रेनिंग करी है उसको बस ऐसे उतारना है। तो वहाँ पे जो उस फील्ड पे जो कंपटीशन था, आपको क्या लगता है ओलंपिक्स में वो हेल्प करेगा? वो ओलंपिक्स में वैसा कंपटीशन आपको हेल्प करेगा? हेल्प करेगा, क्योंकि जितना प्रेशर हमने वहाँ पे लिया, और मुझे लगता है शायद आई थिंक उतना ही प्रेशर आएगा उधर भी, और उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखा वहाँ पे। तो आने वाले ओलंपिक्स के लिए कैसा आपको उम्मीद है? आपकी तैयारियां तो बिल्कुल बहुत अच्छी होंगी ही, कैसे आपको आगे? बस मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट दूँ इंडिया के लिए, और दूंगा मैं बेस्ट, और तैयारी भी अच्छी चल रही है, फोकस के साथ करूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ श्रेयसी मैम जुड़ी हैं, इनसे जानते हैं कि आने वाले पेरिस ओलंपिक्स में ये कैसा परफॉर्म करेंगी, इनकी कैसी तैयारी है। मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। पेरिस ओलंपिक्स आ रहे हैं, आपका डेब्यू ओलंपिक्स है, कैसी तैयारी है मैम आपकी? डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। आपके टीवी चैनल के माध्यम से सिर्फ ये आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपना 100% वहाँ पे देकर दिखाऊंगी। अपनी जितनी भी मेहनत है, कड़ी प्रशिक्षण के साथ वहाँ पर मैं तैयारी के साथ वहाँ पर जाऊंगी, एंड डेफिनेटली इफ़ आई विल डू माय बेस्ट द गॉड विल डू द रेस्ट। मैम, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने 2010 में भी आपने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया है, 18 में आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो एक्सपीरियंस अभी यंग शूटर्स अगर आपके सामने आएंगे कितना हैंडी रहेगा वैसे? I think experience is always a positive thing. It's always good to have experience. But having said that, it's also very important to have that युवा जोश जो यूथ में होता है, जो जब कोई नई चीज़ शुरू करते हैं उसमें सफलता हासिल होती है, तो वो एक जो ललक, जो चाह रहती है, वो भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं भारतीय दल की बात करूँ तो युवा जोश के साथ साथ एक जो गंभीरता जो एक एक्सपीरियंस शूटर की आती है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इस टीम में, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वी विल ऑल सपोर्ट ईच अदर टू डू आवर बेस्ट।
बिल्कुल पिछले ओलंपिक्स में टोक्यो में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस शूटिंग का नहीं रहा था। इस बार कुछ ज़्यादा तैयारियां I हैं don't कुछ? want to dwell in the past about who performed and who didn't perform. I'm really looking forward to performing at the Olympic Games, and I'm pretty sure that everybody going there is giving their 100% when it comes to training, and they really want to perform well and win a medal for our country. They want to make the country proud, and that's what every athlete has in their heart. Thank you. तो आज हम मौजूद थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इस इवेंट में। यहाँ पर हम मिले उन एथलीट से जो आने वाले समय में भारत का परचम लहराएंगे ओलंपिक्स में। उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले ओलंपिक से ज़्यादा इस बार मेडल्स देखने को मिल सकते हैं पेरिस के अंदर। एथलीट से मिलकर जोश भी यही लगा और पीटी उषा जो कि प्रेसिडेंट है आईओए की, उन्होंने भी यही कहा कि इस बार ज़्यादा मेडल्स आने की उम्मीद है। अब हो सकता है जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना परचम लहराया था, इस बार ओलंपिक्स में और ज़्यादा मेडल्स आके वो परचम फिर से लहराए। सहयोगी अंशुल के साथ कैमरामैन प्रणीत, मैं वरुण मलिक, इंडिया टीवी, शुक्रिया।